we are starting a C language from today onward, and this is the first class. So ये पहला क्लास है और इसमें जो है बेसिकली सी लैंग्वेज जो है इट्स मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। एंड इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है वो बेल लैब में ये बनाया गया था, डेट इज़ AT&T बेल लैब। ओके, AT&T बेल लैब इन 1972 and it was designed and written by a man named Dennis Ritchie. So Dennis Ritchie जो है एक बंदा है जिसने इसको डेनिस रिची ने इसको बनाया था। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर उसके बाद इसमें बहुत सारा चेंजेस आया, कहाँ और कैसे बना और किसने बनाया। तो यहाँ पर जो है जो बंदा है जिसने इसको डेवलप किया था, दैट इज़ कॉल्ड डेनिस रिची। ओके, डेनिस रिची। नाउ सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज के जरिए वी डू प्रोग्राम्स। ओके, we do programs. So C language, it's what is the language? This language is nothing but the way of communications. Okay, way of communication. So computer is a machine. Okay, way of communications. So language is a way of communication, and so computer is an electronic device. Or but how can I connect, how can I talk to it? So we can talk to it on and off basis. Okay, so on and off basis. So with the help of the computer language we do write the programs, and there are compiler and interpreter and the linkers will convert the entire codings into the machine understandable formats. So first let's us understand what is a program. Okay, so a program is a set of instruction. Okay, a program is a set of instruction. Like say अगर हमको दो नंबर को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक्सेप्ट टू नंबर्स। ओके, टू नंबर लेंगे, दैट इज से n1 एंड n2, एंड देन ऐड करेंगे, ऐड C इक्वल टू n1 प्लस n2, एंड देन इसको प्रिंट कराएंगे। दिस इज द वे, स्टैंडर्ड वे, एंड देन प्रोग्राम को एंड करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने दो नंबर लिया एंड देन इसको ऐड किया। सो इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 4। ओके, तो ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड इसी को तो हम लोग जो भी प्रोग्राम्स करेंगे सी लैंग्वेज में, सो हम लोग जो कोड देंगे, एक इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सी? बेसिकली C is a language through which we can give instruction to a computer, and C is a very versatile language, and we can do lots of things with the C. Now we can say C as the mother of all language, or C language is mother language of all modern language, we can say it. Okay, now the second is that it is used in system programming also. We can develop the system programs, we can develop the driver of the different hardware. So that is why it is called the system programming language also. It is a procedure oriented language. Okay, procedure and function oriented language. It is a structured programming language. So before that the programming language was not structured, but C language is a structured language programming, and it can be used as mid-level programming language. Okay, it can be used as mid-level programming language. So like say mid-level programming language is assembly language, and we can also embedded the different assembly language code into the C language, and so that's why C language is very powerful, and we can create lots of
lots of programs for the different hardware. So that program is called the driver. Now a little bit of the history here. So here already I have said that it was developed by the Dennis Ritchie at Bell Lab in 1972, 1970 to 1972. Okay, of ATN, that is American Telephone and Telegraph, located in USA, and derived from the language B. So here BCPL, that is the language is derived. Before that, the language name was BCPL. Okay, the BCPL full form is Basic Combined Programming Language. So the full form of this is Basic Combined Programming Language. So basic programming language, and so after B the name is C, that's why it is C. And it is originally intended to be used in the Unix OS. Unix is also another operating system as Windows 10. So we right now we are using Windows 10, and also now Windows 11 is also there. So Unix is currently is also using the Unix, and so it's a very versatile operating system. And you know that the Unix is written in C language. Okay, so now where do we use the C language? Okay, so C language is related to machines and assembly language, as I have already told you. कि C language जो है is related to machine assembly language as well as human, so it is called a middle level programming language. So C can be used to to do variety of applications such as OS. OS means operating system. Firmware for various electronics, like say firmware is जो डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका जो मेमोरी चिप्स में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए फर्मवेयर. So firmware for various electronic, and it is used in building of industrial and communication product, which is used microcontroller. तो here microcontroller भी हम लोग इससे बना सकते हैं. microcontroller, micro means छोटा, and छोटा छोटा programs होता है, that is called also microcontroller or micro programs there. Okay, now let's see the characteristics of C. Okay, so already we know that C is a language. It's a very versatile language. We can use it as a middle level language also. Now the characteristics of C. So what is the characteristics of C? Let us examine that. Points on C. So mother of all modern programming language, as we have already know that. Compiler of newer language such as C++, Java are written in C. So all the language that you know, that Java, C, C++, all these languages is written in C. It has a huge community, and a huge online community also, huge offline community also, because C language, as I said, that it's a mother of all programming, mother of all modern programming language. So इसका जो community है, community means बहुत सारे लोग इसको use करते हैं, and you can find out lots of help online. Okay, lots of groups are there, lots of communities of website is there, where you can find lots of solutions and problem solutions. So इसका एक बहुत बड़ा यूज़ कम्युनिटी है, एंड इसको यूज़ करना जो है, वहाँ से हम लोग अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन प्लेस द क्वेश्चंस एंड दे विल रिप्लाई दैट. मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह यूज़ करने का, जो कि अदर लैंग्वेज में हम लोग को अवेलेबल नहीं है. लाइक जावा जो है, हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज की तरह यूज़ नहीं कर सकते. मिड लेवल लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज होता है, बट असेंबली लैंग्वेज जो होता है बहुत ही टफ होता है लर्न करना.
It's very difficult to learn the assembly language, because if you want to learn assembly language, you need to understand the entire architecture of the computers, okay, entire architecture of the CPU registers. So every part of the hardware you must know that, otherwise you can't do a programming in assembly language. But here it's very easy to write in C language, because it's a little bit related with the English language keyword there, okay. So characteristics of C, as already told, that system programming जो है हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग इसमें बना सकते हैं. सिस्टम प्रोग्रामिंग OS डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, यूज इन लो लेवल प्रोग्रामिंग सच एज ड्राइवर्स एंड कर्नल्स. सो हम लोग जो है ड्राइवर हम और कर्नल्स हम लोग बना सकते हैं. सो ड्राइवर जो होता है जैसे कि माउस का ड्राइवर हुआ, जैसे कि कीबोर्ड का ड्राइवर हुआ, एंड कर्नल जो होता है बेसिकली वो जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पर बीच में एक अगर हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर जो होता है ये कर्नल काम करता है, ओके. इसके ऊपर जो होता है कर्नल होता है, एंड इसके ऊपर जो होता है वो शेल होता है, एंड उसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस द यूज़र, दैट इज़ आई एंड यू एज ए यूज़र. तो कर्नल जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ that particular piece of the software, that is the system software, we directly connect with the hardware or communicate with the hardware. So this is a very important. Now case sensitive language. Case sensitive means, say if I define here int a and a, it's totally different here, okay. So that is why it is case sensitive. Follow modular approaches. नाउ अब यहाँ से हम लोग आते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो कैसे हम लोग अगर एक प्रोग्राम्स अगर हम लोग करते हैं तो उस प्रोग्राम को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में. दो चीज़ होता है, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर. सी जो है कंपाइलर्स बेस्ड लैंग्वेज है. तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है वो हमारा जो सोर्स कोड है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पर वॉइड मीन अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ एंड प्रिंट एफ दे रहा हूँ, से हेलो, एंड यहाँ पर मैं बंद कर दिया. सो यहाँ पर ये जो कोडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स कोड, ओके. इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स कोड और प्रोग्राम्स. अब ये प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, ओके. सो हियर यहाँ देख रहे हो कंपाइलर क्या है, इट्स लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट आवर सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, ओके. सो ये कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में यहाँ पर. सो अगर मान लो कि मेरा फाइल का नाम है से abc.c, तो इसको ये कंपाइलर कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, abc.obj, ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको समझना. सो ये obj जो है ये बेसिकली ये मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो है रन नहीं करेगा, ओके. ये रन नहीं करेगा. तो इसको हमको क्या करने पड़ता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगा उसको एक लिंकर, एक और पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लिंकर जो है इसको लिंक करता है, एंड इसको जो है ये abc को बना देता है abc.exe फाइल, abc.exe फाइल. ये फाइल जो है एग्जीक्यूट करता है, ये फाइल जो है रन करता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, सोर्स प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल जो है होने के बाद वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो है लिंकर से लिंक होता है, मतलब कि मेरा OS से ये कनेक्ट होगा, एंड देन कन्वर्टेड इनटू abc.exe, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर बहुत सारे जो भी प्रोग्राम हम लोग करेंगे ये सारा का सारा जो है ऐसे यहाँ से होते हुए ये सारा गुजरेगा, ओके. सो यहाँ पर लिंकर देखो कि लिंकर बेसिकली क्या है, लेट्स सो लिंकर इज अ सिस्टम प्रोग्राम विच लिंक द ऑब्जेक्ट कोड टू द मशीन. सो जैसे मैंने कहा कि लिंकर जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से वो क्या करेगा, जैसे अभी मैंने कहा कि जो मेरा फाइल होगा abc.c,
इसको जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो वो क्या बनेगा, abc.obj फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा। दैट मीन्स ये कन्वर्टेड है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, बट ये रन नहीं करेगा बिकॉज ये जो है मशीन डिपेंडेंट होता है। सी लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट, एंड जिस मशीन में अगर हम जिस मशीन के आर्किटेक्चर में हम इसको रन करना चाहेंगे वहाँ पर उसको लिंक कराने पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ लिंकर ये बन जाएगा abc.exe फाइल, दैट इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कीवर्ड्स क्या है। बेसिकली कीवर्ड्स जो है, these are reserved word which cannot be used for any other purposes in a program. So these are the reserved words, मतलब कि ये रिजर्व होता है, इसको हम लोग एज ए वेरिएबल या एज ए फंक्शंस या कुछ भी तरह से यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। जनरली दे आर रिटेन इन लोअर लैंग्वेज। ओके, सो कीवर्ड जो है, ये सारा जो यहाँ कीवर्ड है, यहाँ पर देखो कि ये कीवर्ड वॉइड है, यहाँ पर इंट कीवर्ड है, सॉर्ट है, कॉन्स्ट है, गो टू है, ब्रेक, कंटिन्यू, इफ, एल्स। सो ये सारा जो कीवर्ड है, तो इसको जो हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। लेकिन लाइक कि अगर हम लोग INT से INT वॉइड लिए तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ओके, ये रॉन्ग होगा। सो INT वॉइड हम लोग कोई भी यहाँ पर जितना भी जो वर्ड दिख रहा है इसको हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं डिफाइन करेंगे। अब जो है सी लैंग्वेज जो है इंस्टॉल हम लोग करेंगे। तो सी लैंग्वेज जो है बेसिकली हम लोग ऑनलाइन भी रन करा सकते हैं, एंड सबसे बेहतर जो होता है वो कोड ब्लॉक होता है। ओके, कोड ब्लॉक जो होता है उसमें MinGW जो है, MinGW, इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, एंड देन इसको यहाँ से लिखते हैं कोड ब्लॉक। ओके, कोड ब्लॉक डाउनलोड, ओके, फॉर विंडो, यहाँ पर लिख देते हैं MinGW। तो उसके हिसाब से जो है MinGW ये होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो विंडो है यहाँ MinGW दिख रहा होगा, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ओके, यहाँ से सोर्स फोर्स में जाके यहाँ से ये जो है यहाँ से भी ये ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको मैं डाउनलोड में नहीं करूँगा। एंड तो यहाँ से जो है इसको MinGW को जो है दैट इज़ कोड ब्लॉक यहाँ ऐसा होगा, इसको डबल क्लिक करके हम लोग जो है इसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। सो ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम इसको इंस्टॉल जो है ये अभी हम नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये नेक्स्ट बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी है उसमें करना क्या है, हमको जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखो कोड ब्लॉक आएगा, कोड ब्लॉक, फिर यहाँ पर कोड ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे। इसको जो है यहाँ पर एक जगह आके सेटिंग में इसको वहाँ पर हम लोग को MinGW के एक्सेप्ट करने पड़ेगा एज ए कंपाइलर है। तो यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ देखो कंपाइलर दिख रहा है, ये कंपाइलर में आएंगे और यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर टूल चेन एग्जीक्यूटेबल होगा। तो यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट कराएंगे तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पर है, और उसके बाद ओके कर देंगे, देन यू गुड टू गो। ओके, सो दूसरा जो है हम लोग बहुत सारा जो है ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि सी कंपाइलर और सी कंपाइलर ऑनलाइन, सो यहाँ पर बहुत सारा है। तो सबसे बेस्ट जो हमको लगता है यहाँ पर ऑनलाइन GDB। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग आके, तो यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, इसको ये कोड यहाँ पर हम लोग इसको ये पूरा को यहाँ से हम अगर डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद यहाँ पर जस्ट इस बीच के अंदर में जो भी हम लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पर रन अगर करते हैं तो ये रन या हेलो वर्ल्ड है। सो यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं से हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, सो यहाँ पर देखो कि ये प्रोग्राम जो है आराम से इट्स रन हाउ आर यू।
Okay, so with the help of this compiler we can do the programs easily, and here I'll do these programs here. Then और भी turbo C है, okay, Borland C है, so lots of compilers are there we can use. So हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया. अब हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं और फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसको डाइसेक्ट करते हैं एक एक करके. सो यहाँ पर int मेन डालेंगे एंड देन यहाँ पर डिफरेंट कोड्स डालेंगे. ओके, जैसे कि मान लो कि अगर हमको यहाँ पर प्रिंट करना है 2 नंबर, तो यहाँ पर int मेन डालेंगे. अच्छा, यहाँ पर जितना भी वर्क होता है वो फंक्शन का जरिया होता है. तो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ कुछ फंक्शंस होते हैं, वो यहाँ पर इसको हमको हैज़ इंक्लूड डालना ज़रूरी है. हैज़ इंक्लूड stdio.h. stdio.h का मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. अब मान लो कि यहाँ पर अगर मैंने a = 10 दे दिया एंड b = 20, सो यहाँ पर सबसे पहले हमको वेरिएबल को डिफाइन कर देने होगा a b c. तो a = 20, b = 20, देन c = a + b. एंड देन यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो हम लोग %d डालेंगे. सो इसको हम लोग बाद में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है. सो यहाँ पर अगर जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, सो ये मेरा क्या देगा, 30 देगा. ओके, एंड यहाँ पर जब अगर हम इंट देते हैं तो यहाँ पर हमको रिटर्न 0 देना ज़रूरी है. रिटर्न 0 देना ज़रूरी है. ओके, सो मैं जितना भी प्रोग्राम करूँगा वहाँ ज़्यादातर इंट के बजाय हम यहाँ पर वॉइड देंगे. ओके, यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग वॉइड देंगे. सो मेन जो है मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज प्रोग्राम वोंट वर्क. मेन तो ज़रूरी है, मेन को होना ही होगा. दिस फंक्शन इज़ द हार्ट ऑफ सी प्रोग्राम्स. अगर हम लोग मेन प्रोग्राम अगर नहीं करते हैं तो प्रोग्राम मेरा रन नहीं करेगा. ओके, एनी स्टेटमेंट विद इन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. सो कोई भी जो ब्लॉक होगा मेन के अंदर में, सो हमने यहाँ वॉइड दे रहे हैं, जो भी यहाँ के भीतर के अंदर में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है इसी को पहले सर्च करेगा कि मेन कहाँ पर है. जितना भी फंक्शन हो उसको नहीं देखेगा, मेन से ही स्टार्ट करेगा. तो मेन जो है वो एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है. उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है सी प्रोग्रामिंग जो होता है, यहाँ पर बहुत सारा हेडर फाइल्स होता है. ओके, हेडर फाइल्स होता है. जैसे अभी हमने यहाँ पर इस जगह मैंने यहाँ पर जैसे मैंने हम लोग यहाँ पर जो stdio दी है, तो ये जो है ये एक हेडर फाइल है. सो यहाँ पर C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड ए मैक्रोस, टाइप्स, डेफिनेशंस एंड फंक्शंस और टास्क लाइक स्ट्रिंग हैंडलिंग, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, memory allocations and several order operating system services. So कुछ libraries होता है and कुछ header files होता है, and the application programming interface of the C standard library is declared in the number of header files. Each header file contain one or more functions, declaration, data type, definition and macros. जैसे हमने दिखाया अभी std.io.h के जरिए. So we can avail operations in our program by using has include. So has include के जरिया we will include the file. Okay, either the include the file, so header file. Now before our main function. So यहाँ पर जो है, so यहाँ पर देखो कि how to make use of built-in functions. तो built-in function के लिए हम लोग use करते हैं has include directives, instruct the preprocessor to read and include an existing file into the source code such that it can be utilized in our programs. A preprocessor is a program that run prior to where it is called. ना यहाँ दो फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, printf एंड scanf. सो printf कहाँ पर होगा, वो मेरा जो है printf जो है वो stdio के अंदर होगा. पहले कहा कि stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. स्कैनर भी जो है stdio.a के अंदर होता है. ये जो है printf जो है ये प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है. एंड इसमें जैसे कि n इक्वल यहाँ पर है, इस जो यहाँ पर स्पेसिफायर हमको देने पड़ता है कि किस तरह का डेटा हम जा रहे हैं प्रिंट करने के लिए. %d का मतलब है कि इंटीजर डेटा हम लोग प्रिंट कर रहे हैं. एंड यहाँ पर स्कैनफ है.
स्कैनअप से हम लोग जो है डेटा को इनपुट कराते हैं, एंड जब ये इनपुट कराएंगे तो यहाँ पर एम्परसेंड साइन देते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे क्योंकि ये एड्रेस ऑपरेटर है। उसके बाद कुछ कमेंट्स होता है, दे आर इग्नोर्ड लाइक कमेंट्स होता है, ऐसे हम लोग डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसे, या मल्टीपल कमेंट्स होता है, यहाँ पर ऐसे करके डाल सकते हैं। तो मल्टीपल कमेंट्स होता है इसमें, जो कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। दिस इज़ यूज एज अ रेफरेंस नोट के मान लो कि मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ int से p, सो p क्या है, तो p इक्वल टू से प्रिंसिपल, तो वहाँ पर हमने एक नोट्स बना दिया। मल्टी लाइन कमेंट्स है, मल्टी लाइन कमेंट्स मैंने बताया यहाँ पर जो है डॉलर, यहाँ पर ये जो है एक स्टार देंगे, देन यहाँ पर जो कमेंट करने के बाद इसको बंद कर देंगे। ओके, इसके बीच में जो भी कमेंट होगा ये मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। सो यहाँ पर एक बेस, कोई भी एक प्रोग्राम में जो है stdioh को इंक्लूड करना ज़रूरी है। ओके, देयर इज़ अनदर ज़्यादातर यूज़ होता है कॉन आईओ। कॉन आईओ का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल। ओके, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस, द getch फंक्शन इज डिफाइंड इन कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल्स। और भी बहुत सारे फंक्शंस होता है, बट हम लोग कोड ब्लॉक जब यूज़ करेंगे तो कॉन आईओ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि getch हमको वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर टर्बो सी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वी हैव टू यूज़ द कॉन आईओ, अदरवाइज योर स्क्रीन विल नॉट स्टॉप, ये जस्ट मैंने स्क्रीन जो स्टॉप नहीं होगा वो आके चला जाएगा, तो उसको फिर वहाँ से हमको विंडो से जाके आउटपुट देखने पड़ता है। सो getch अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होती है। int मेन एक होता है, आइदर यू राइट हेयर int मेन और यू राइट हेयर void main। ओके, so what is the difference between int main and int void main? so int main में क्या होता है, रिटर्न देना जरूरी होता है, रिटर्न 0 देना जरूरी है, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेकिन जब अगर हम लोग void main से करते हैं तो इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देन printf जो है ये क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट डेटा ऑन द कंसोल। getch this function asks for a single character until you press any key it's hold the screens। सो getch जो है ये कोड ब्लॉक में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन टर्बो सी में इसको यूज़ करते हैं। अब देखो कि डेटा टाइप्स किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं प्रोग्रामिंग में चला जाऊंगा। सो डेटा टाइप्स बेसिकली इन द प्रोग्राम वी हैव टू डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, हेंस इट इज़ मैंडेटरी टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द डेटा टेकन। सो यह डेटा टाइप्स क्या क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग डेटा होता है, एंड कैरेक्टर्स होता है। सो लाइक से अगर हम डिफाइन करते हैं कोई वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स का मतलब है कि जहाँ पर हम लोग डेटा रखते हैं, से मान लो कि int p कॉमा t कॉमा r। सो यहाँ पर जो है p कॉमा t कॉमा r किस तरह का वेरिएबल्स है, इंटीजर डेटा टाइप से, मतलब हम लोग इसमें कोई डेसिमल वैल्यू लाइक से 5.5 हम लोग नहीं रख सकते हैं। बट इफ आई गिव हियर फ्लोट से फ्लोट p, सो इसमें जो है हम लोग से 5000 समथिंग लाइक 50 हम लोग रख सकते हैं, बट इन केस ऑफ इंट तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये इंटीजर डेटा है, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप एंड कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप मीन्स ABCD लाइक दिस। Now what is a token? Each individual character in a C program is termed as a tokens. Like say here token जो है ये कितने तरह का होता है, आइडेंटिफायर होता है, लिटरल्स होता है, असाइनमेंट होता है, पंक्चुएटर होता है, ऑपरेटर्स होता है। आइडेंटिफायर लाइक से int a कॉमा b कॉमा c। सो यहाँ पर जो ABC क्या है, वेरिएबल्स है, इसको हम लोग आइडेंटिफायर करेंगे। तो यहाँ पर अगर int 10 देते हैं तो 10 क्या हो गया, ये इंटीजर लिटरल हो गया, एंड दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस आर द पंक्चुएटर। ओके, एंड से इफ लाइक से if I say here b equal to 20 and c equal to a plus b, so ये जो प्लस साइन है ये क्या है, प्लस साइन इज एन ऑपरेटर। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑपरेटर, वी विल लर्न लेटर ऑन, एंड देयर इज अ सेपरेटर, यहाँ कॉमा कॉमा क्या है, इज अ सेपरेटर। नाउ आइडेंटिफायर किसको बोलेंगे मैं, आइडेंटिफायर आर आल्सो नोन एज वेरिएबल्स। मैंने कहा कि लाइक int a b c, so what is this abc? abc is a variable. So it is name memory location which contains some value, or we can say it's a placeholder of data. We can say it's a placeholder of data. The value of an identifier can change during the life cycle of a programs.
नाउ लिटरल्स किसको बोलते हैं? लिटरल हो गया कांस्टेंट वैल्यू. लिटरल्स आर द कांस्टेंट यूज्ड इन द प्रोग्राम्स. बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिटरल्स. क्या क्या होता है? न्यूमेरिक लिटरल होता है जिसमें इंटीजर एंड रियल नंबर होता है. इंटीजर का मतलब से a इक्वल टू 10. सो ये इंटीजर लिटरल हुआ. और अगर मान लो कि a इक्वल टू 10.5 मैंने दे दिया, सो ये हो गया तुम्हारा रियल नंबर लिटरल. नॉन न्यूमेरिक लिटरल हो गया लाइक कैरेक्टर हो गया, ओके, नल कैरेक्टर्स हो गया. एंड देन देर इज अ इंटीजर डेटा टाइप. सो यहाँ पर जो है कितने तरह के डेटा टाइप्स होता है. ये यहाँ पर देखो इंट होता है. इंट का जो होता है नॉर्मल होता साइन होता है और अनसाइन होता है. सो अगर हम लोग सिर्फ इंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक अनसाइन साइन ले लेता है. लेकिन अनसाइन हो गया 2 to 4 बाइट्स होता है. तो यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर क्या होता है, साइन में क्या होता है प्लस माइनस दोनों हम लोग लिख सकते हैं. लेकिन अनसाइन में क्या होता है हम लोग माइनस वैल्यू नहीं लिख सकते. यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ जीरो से, यहाँ से ये सारा वैल्यू जो है अगर 2 बाइट्स होगा तो 65,000 होगा, 4 बाइट्स अदरवाइज ये सारा लेगा. सो डिपेंड करता है कि हम लोग साइन करते हैं, साइन देंगे तो प्लस माइनस. अगर हम कोई भी चीज़ नहीं देते हैं लाइक INT, अगर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं INT A तो ये साइंड हो गया. लेकिन अगर हम लिखते हैं INT अनसाइन लाइक, सो यहाँ पर अनसाइन INT, सो अनसाइन INT जैसे देंगे वो हम लोग उसमें कोई माइनस वैल्यू नहीं लग सकते हैं. तो उसके बाद जो होता है शॉर्ट का जो होता है एक शॉर्ट INT होता है, अनसाइन शॉर्ट INT ऐसे लिखते हैं हम लोग. देन लॉन्ग INT होता है, देन अनसाइन लॉन्ग INT होता है. ये हो गया इंटीजर डेटा. देन उसके बाद जो है इंटीजर लिटरल्स होता है. इंटीजर लिटरल क्या हो गया? The number which are represented without decimal points are called integer, okay, and they are whole numbers having positive or negative sign associated with it. So integer literals मैंने जैसे कहा कि a equal to 10, तो ये 10 क्या है? It's in integer literal. Like this 1, 5, 10, minus 8, 98, 9875, minus 57, 0, etc. Now the floating type. Now floating type में क्या क्या होता है? फ्लोट होता है जो को 4 बाइट्स देता है. मतलब इसमें जो टोटल वैल्यू रेंज होगा 1.2 ई में, ई मतलब हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 32, ओके, प्लस 38 सॉरी. सो इट 6 डेसिमल प्लस होता है, यहाँ देख रहे हो. एंड देन डबल जो होगा उसका डबल हो जाएगा, या और इसके जो भी यहाँ वैल्यू होगा उसका डबल हो जाएगा. एंड लॉन्ग डबल होता है 10 बाइट्स ले लेता है, तो और उसका जो है इसका डबल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग यूज वैल्यू रख सकते हैं. उसी तरह से रियल नंबर लिटरल क्या होता है? द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड विद डेसिमल पॉइंट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 1.5 माइनस 9.6 1.4587. उसके बाद कैरेक्टर टाइप होता है. There are 256 character availables and a term as ASCII characters. So ASCII standard stand for American Standard Coded for Information Interchange. Each ASCII character is assigned a specific numeric value called its ASCII code. Basically ASCII code जो है वो 0 से लेके 127 तक होता है. उसके बाद एक्सटेंडेड ASCII कोड है जो कि 256 कैरेक्टर तक और 0 to 255 होता है, ठीक है. The ASCII codes for some frequently used characters are as follows, like A to Z here 65 to 90. So अगर मान लो कि अगर मेरा कैरेक्टर अगर A है तो इसका ASCII कोड क्या होगा 65. कैरेक्टर अगर B है तो इसका ASCII कोड क्या होगा 66. कैरेक्टर अगर C है तो इसका ASCII कोड क्या होगा 67, लाइक दिस. एंड स्मॉल a के लिए 97 से 122, 0 से लेके 9 जो होता है वो 48 से 57. सो ये सारा ASCII कोड होता है. एंड कैरेक्टर डिटेल्स हो गया, दीज आर अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स. दिस इंक्लूड्स आर अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक. इसको हम लोग कैरेक्टर को सिंगल कोड में लिखते हैं. ये सीधे ए सिंगल कोड, ओके. ये अगर 1 है तो 1 क्या हो गया. यहाँ पर अगर हम 10 ऐसे सिंगल कोड में देते तो ये नंबर नहीं हुई है, कैरेक्टर लिटरल हो गया, ओके. सो नोटिस दैट दीज आर इंक्लूज विद इन अ सिंगल कोड्स. बेसिकली 10 यहाँ पर जो है वो डबल कोड्स में आएगा बिकॉज इट बिकम द स्ट्रिंग हियर. उसके बाद जो आता है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग आता है. स्ट्रिंग का जो है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग कॉमनली यूज फॉर्मेट स्ट्रिंग %d डेसिमल इंटीजर के लिए, %u अनसाइन के लिए. तो अगर हम लोग मान लो कि अगर कोई नंबर अगर है
सर INT A इक्वल टू 10 है, अगर इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो कैसे प्रिंट करेंगे, हमको बताने पड़ेगा कंपाइलर को कि हमको क्या प्रिंट करना है। सो यहाँ पर अगर हम A देते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज D का मतलब हो गया कि ये डेसिमल इंटीजर है। परसेंटेज F देकर देंगे तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग इंटीजर है। परसेंटेज U देंगे तो अनसाइन इंटीजर है। परसेंटेज F फ्लोट है और डबल है। डबल के लिए हम लोग डालते हैं LF, ओके, डबल के लिए डालते हैं लॉन्ग F, एंड C डालते हैं फॉर कैरेक्टर के लिए। ओके, सो अब हम लोग जो है प्रोग्राम्स के तरफ जाते हैं। प्रोग्राम कैसे बनता है, हम जो है एक कोड ब्लॉक में एक प्रोग्राम्स हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम्स को डाइसेक्ट करते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या। ओके, हम लोग जो है अब जो है कोड ब्लॉक में प्रोग्राम्स लिखेंगे। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ देखो एक नया यहाँ पर न्यू फाइल है, यहाँ जस्ट नीचे में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ एम्प्टी फाइल में क्लिक करेंगे। एम्प्टी फाइल में क्लिक करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे पहले। ओके, सेव फाइल जब करेंगे C++ में आ रहा है। सो हम जो है एक अपना जैसे मैंने D ड्राइव में एक C लैंग्वेज का एक फोल्डर बना लिया है, लोग भी जो है एक C ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना। एंड यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं, सो 2 नंबर को हमको ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड लिख दिया, तो ये मेरा प्रोग्राम्स का हो गया ऐड। अब यहाँ पर जो है हमको देना है हैज़ इंक्लूड्स। ओके, हैज़ इंक्लूड, यहाँ पर देखो हैज़ इंक्लूड ऑटोमेटिक आ गया। सो यहाँ पर हमने दे दिया एंड यहाँ पर हम क्या देंगे stdio.h। सो ये मेरा एक प्रोग्राम यहाँ पर stdio.h हो गया। सो आफ्टर हैज़ इंक्लूड हम लोग यहाँ पर आइदर INT मेन डाल सकते हैं, तो मैं दोनों डाल के दिखा दे रहा हूँ। INT मेन यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जो है अब जो है हम यहाँ पर INT से A, B, C हमने डाला। सो ये हो गया डेटा टाइप्स। तो हमने किस तरह का वेरिएबल डालना है, ABC में इंटीजर वेरिएबल डालना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम वेरिएबल डाल देते हैं से 20 एंड B इक्वल टू जो है वो हमने 90 डाल दिया एंड देन C इक्वल टू जो है यहाँ पर हमने डाल दिया A+B। सेमी कॉलन देना नहीं बोलना, ये सेमी कॉलन क्या है, पंक्चुएटर है, एंड ये जो कॉमा कॉमा ये सेपरेटर है। उसके बाद हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट में हमको बताना है कि ये क्या है, किस तरह के डेटा हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमको %d बोल देंगे तो वो समझ जाएगा कि हमको जो है इंटीजर डेटा प्रिंट करना है। ओके, तो हमने इंटीजर डाटा प्रिंट करना है। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं, यहाँ पर एक एरर दिया। ओके, यहाँ पर एरर सॉरी यहाँ पर सेमी कॉलन है। ओके, मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो यहाँ पर एक जो है एक वार्निंग साइन देता है क्योंकि यहाँ पर रिटर्न 0 मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर रिटर्न 0 अगर हम दे देते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर यहाँ पर दिया हुआ है इसीलिए हमको रिटर्न अगर हम देते हैं। सो इसको जैसे हम रन करेंगे तो मेरा एक जो एक यहाँ पर जो पहले एरर आ रहा था, एरर नहीं एक वार्निंग आता है, वो नहीं आया। एंड यहाँ पर देखो 110, तो 110 क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सो अगर हम इसको 110 के यहाँ पर अगर हम %d के पहले अगर हम लिख देते हैं सम इक्वल टू %d, अब इसके बाद हम इसको अगर रन करते हैं बिल्ड एंड रन, सो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है सम इक्वल टू 110। ओके, सम इक्वल टू 110। तो ये एक सिंपल सा फाइल हुआ। तो अब इस सिंपल सा प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम रन करेंगे हमको सेम वैल्यू देगा 110, बट हम चाह रहे हैं कि अपना वैल्यू मतलब ओन वैल्यू। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस दोनों को डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैनफ। स्कैनफ यूज़ करने से पहले हमको यूज़र को बताना है कि एंट्री क्या करना है। तो यहाँ पर जो है एक हम फंक्शन यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंटफ। यहाँ पर डालेंगे इंटर टू नंबर। उसके बाद यहाँ पर देखो कि इंटर टू नंबर हमने डाला और यहाँ पर /n देंगे। /n जो है ये स्केप सीक्वेंस है, ये नेक्स्ट लाइन में आता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसको पर एक सेपरेट क्लास होगी। सो डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है। जस्ट यहाँ पर समझ लो कि /n देने से नेक्स्ट लाइन वो रीड करेगा।
अब यहाँ पर हम एक स्कैनफ फंक्शन लेते हैं एंड देन यहाँ पर देखो कि दो वेरिएबल हमको इनपुट कराना है, तो यहाँ पर डबल कोटेशन में हम देंगे %d एंड देन अगेन %d, दो नंबर इनपुट कराना है। एंड जब भी हम स्कैनर से कोई वैल्यू लेंगे तो हमको इम्पर्शन देना जरूरी है, ये एड्रेस ऑपरेटर था। हम लोग जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स जान लेंगे कि ये क्यों यूज़ होता है। एम्पर्सन ए एंड एम्पर्सन बी, ओके, एम्पर्सन ए एंड एम्पर्सन बी। सो अब देखो कि यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर a = 10, b = a = 20 एंड b = 90 जैसे मैंने दिया था, 110 आ रहा था, हमने नहीं दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम दो नंबर मांगेगा, यहाँ पर देखो दो नंबर मांगेगा। सो हमने से यहाँ दिया 50 एंड देन दिया यहाँ पर से 6। सो यहाँ पर कितना आया 56। फिर से अगर मैं इसको रन करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, सो अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 45 दिया एंड से 32 दिया, सो इट्स 77। सो यहाँ पर जो भी अगर यहाँ पर जैसे प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे तो मेरा सब्ट्रैक्टेड आएगा। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ होता है, स्टार, ओके, और डिवीज़न के लिए ये वाला स्लैश यूज़ होता है, ओके। सो ये जो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, यहाँ प्रोग्राम में जो है int abc यहाँ पर यूज़ हुआ। ये abc क्या है, वेरिएबल से, इन क्या है, डेटा टाइप से। उसके बाद इंटर टू नंबर्स मैंने दिया, देन स्कैनफ %d क्यों दिया दो, इसीलिए कि हमको दो नंबर लेना है। एंड देन c = a + b और a - b, जो भी हम यहाँ पर ऑपरेटर देंगे उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। तो मैंने यहाँ पहले प्लस था तो ये हमने पहले से डाल दिया। एंड उसके बाद इसको यहाँ पर बिल्ड एंड रन करेंगे एंड देन यहाँ पर नंबर आस्क करेगा। सी यहाँ पर जैसे 5 और 6 मैंने एंट्री किया तो ये 10 हुआ। अब यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर बोला था कि हमने इंट भी डालेंगे, फ्लोट भी। सो हम यहाँ पर फ्लोट डाल रहे हैं, वॉइड मेन के जगह फ्लोट। तो वॉइड मेन जैसे अगर हम डालेंगे तो हमको यहाँ रिटर्न का ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है, एक बिल्ड फेल्ड, नो टारगेट इन नो प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है वो जो एक वार्निंग साइन आया है क्योंकि हमने यहाँ रिटर्न दिया हुआ है, ओके। सो लेट्स इसको रन करते हैं। सो अब यहाँ पर इसको जो है हमको हटा देते हैं, इसको हटाना ज़रूरी है। नाउ इसको फिर से हम बिल्ड एंड रन करेंगे। सो अब मेरा जो वार्निंग, पहले जो वार्निंग साइन था, सी वो वार्निंग साइन यहाँ पर अब नहीं है, वो 0 वार्निंग है, ओके। सो अगर हम लोग एंट्री करते हैं वॉइड मेन, सो हमको रिटर्न 0 देने का ज़रूरत नहीं है, ओके। सो मैं जो जितना भी प्रोग्राम बनाऊंगा सारा प्रोग्राम का वॉइड मेन से बनाऊंगा, कुछ प्रोग्राम int मेन से भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो है सी का मैंने जो आज इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर मैंने लिया फर्स्ट क्लास में, सारा का सारा चीज़ समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर मुझको कमेंट में बताना।